after intense campaigning for the 2024 Lok Sabha elections, Prime Minister Narendra Modi will arrive at the famous Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari district, Tamil Nadu, today for a spiritual sojourn. The Prime Minister will undertake a 48-hour meditation at the same spot where Swami Vivekananda once meditated. Notably, at the end of the 2019 election campaign, Prime Minister Modi undertook a 15-hour-long Ekantwas, solitary meditation in Uttarakhand's Kedarnath shrine. Prime Minister Modi will arrive in Thiruvananthapuram, Kerala from Uttar Pradesh at around 3:55 p.m. and from there he will reach Kanyakumari by helicopter in the evening. He will then take a private boat to the Swami Vivekananda Memorial Hall located in the sea. After visiting the Swami Vivekananda Memorial Mandapam, he is expected to worship at the place where Bhagwati Amman's foot is enshrined in the rock at Sripada Mandapam. Following this, he will engage in solitary meditation in the Dhyana Mandapam at the Vivekananda Memorial Hall on the 31st of May. The Prime Minister will stay at the Swami Vivekananda Memorial Hall located in the sea until the afternoon of the 1st of June. He will in fact conclude his meditation and return to the shore by boat on the same day. In view of the Prime Minister's visit, the entire Kanyakumari district in Tamil Nadu has been placed under a police net with 5 layers of security. While the 6th phase of polling for the 18th Lok Sabha elections is already over, the 7th and final phase of the election is scheduled for the 1st of June. That's in fact Prime Minister Narendra Modi's itinerary. Prime Minister Modi will arrive at the famous Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari today. He will arrive in Thiruvananthapuram, Kerala from UP at around 3:55 p.m. From there, the Prime Minister will reach Kanyakumari by helicopter in the evening and will then take a private boat to the Swami Vivekananda Memorial Hall, which is located in the sea. After that, the Prime Minister is expected to worship at Bhagwati Amman's footprint. And following this, he will engage in solitary meditation in the Dhyana Mandapam on the 31st of May. The Prime Minister will stay at the Swami Vivekananda Memorial Hall until the afternoon of the 1st of June. He will conclude his meditation and return to the shore by boat on the same day. My colleague Surbi, in fact, brings us the latest from the ground. Let's take a listen. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको कन्याकुमारी से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और ये जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर तस्वीर देख रहे हैं, ये है कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ आपको बता दें 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ही ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये वही जगह है जहाँ पर आपको बता दें कि विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिन तक ध्यान किया था और विकसित भारत का सपना देखा था। अब महत्वपूर्ण ये है, इस जगह की खासियत दिखाने से पहले, बताने से पहले आपको ये सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। और कपिल, एक बार वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा चुके हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि जो फेरी सर्विसेज हैं उन्हें अब 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो पूरा सिक्योरिटी चेक कर रही हैं। और
यहीं से एक फेरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए सीधा ध्यान लगाने के लिए उस खास जगह पर पहुंचेंगे और यहाँ पर लगभग 24 घंटे के लिए वो ध्यान लगाएंगे। हालांकि बहुत खास है ये जगह और इसकी खासियत बताने के साथ साथ इस वक्त आपको ये तस्वीर भी मैं दिखा दूं, जहां देखिए कि किस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और अब खासियत ये है और उत्साह लोगों के बीच इस बात को लेकर भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। आप जानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं? यस, जानती हूँ। आपने ये जगह देखी है, खासियत जानती हैं आप इसकी? अभी सुबह हम यहाँ आए थे, हमने देखी ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है। हम कोल्हापुर से आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, बहुत भीड़ लगी हुई है और यही वजह है कि लोगों की खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के आने से पहले फिलहाल यहाँ पर इन फेरी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और इम्पॉर्टेंट ये होगा कि किस तरीके से अभी भी लोगों के बीच वो उत्साह है और लोग यहाँ पर इस बात से वाकिफ हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देती हूँ क्योंकि एक फाइनल सिक्योरिटी चेक यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है एक फेरी के जरिए, ये देखिए पूरे इस एरिया को वहाँ से कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, इसलिए दूसरा रूट लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि ये वो जगह होगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि बेहद खास है और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और अब इम्पोर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले विवेकानंद मेमोरियल पर 24 घंटे के लिए ध्यान करेंगे। कैमरामैन कपिल के साथ सुरभि शर्मा, TV9 भारतवर्ष, कन्याकुमारी।